پیارے دوستوں، اگر آپ نے ہماری کہانی کا پہلا حصہ مس کر دیا ہے تو پہلے وہ ضرور دیکھیں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کیونکہ جب تک آپ پہلا پارٹ نہیں دیکھیں گے یہ دوسرا پارٹ آپ کو مکمل سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن جب مجھے سفیان نے بتایا کہ آپ لوگ وہ گھر لینے کا رسک لے رہے ہو تو میں نے اس وجہ سے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ آپ لوگوں سے دو ٹوک بات کر سکوں، کیونکہ اگر آپ لوگ وہ گھر خرید لیتے ہو تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار خود ہی ہوگے، اور آپ لوگ کسی بھی وجہ سے دوبارہ مجھے وہ گھر واپس نہیں کر سکو گے۔ تو میں بھی سفیان کی طرح آپ لوگوں سے آخری بار پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ واقعی میں وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں؟ آصف نے کہا جی ہاں بالکل، ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں، پر آپ اس کی مناسب قیمت لگائیں۔ سکندر صاحب نے کہا دیکھو، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس گھر پر لگایا ہوا تمام پیسہ میرے لیے برباد ہے، اور ایسے میں اگر آپ لوگ اس گھر کو خریدنے الفی ہو تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی خبر ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس گھر کو کتنے میں خرید سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو میں اب سے کوئی پرافٹ کی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس پر لگائے ہوئے پیسے کی وصولی کی بات کر رہا ہوں۔ تحریر دینی ولف۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ مجھے خود ہی بتا دیں کہ اس گھر کے آپ مجھے کتنے پیسے دو گے۔ آصف نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا جی ہم اس گھر کے آپ کو 40 لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آصف کی یہ بات سن کر توصیف اور کاشف تھوڑا غصے میں آصف کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ توصیف اور کاشف کے حساب سے آصف نے بہت ہی کم قیمت لگا دی تھی، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب سکندر صاحب آصف کو کھری کھری سنائیں گے اور یہ گھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سکندر صاحب نے آصف کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولے بس اتنا ہی۔ آصف نے کہا جی سکندر صاحب۔ اس دوران توصیف نے آصف کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے سرگوشی میں کہا بھائی پیسے بڑھاؤ۔ آصف نے توصیف کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، ہلکے سے کہا تم چپ رہو۔ اس دوران سکندر صاحب بھی آصف اور اس کے بھائیوں کے بیچ چلتی اس تکرار پر غور کر رہے تھے۔ آصف اپنے دانت کو دبائے ہوئے اپنے بھائیوں سے غصے میں کہہ رہا تھا، جب میں بات کر رہا ہوں تو تم بیچ میں اپنی ٹانگیں کیوں اڑا رہے ہو؟ اتنے میں سکندر صاحب نے کہا اب تم لوگ اب میں لڑنا بند کرو اور میری بات سنو، میں 50 لاکھ میں تمہیں وہ گھر دے دیتا ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ آصف نے عجیب سا منہ بنا کر کہا سکندر صاحب اب ماشاءاللہ سمجھدار انسان ہیں، آپ کو یہ کیوں نہیں لگ رہا کہ ہم وہ گھر 40 لاکھ میں اب سے لے کر آپ کی مدد ہی کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ کے پیسے ڈوبے ہی ہوئے ہیں، اور کون ایسا ہے جو کہ 40 لاکھ بھی خرچے گا اور موت کے سائے میں بھی رہے گا؟ اس وجہ سے 40 لاکھ بھی بہت زیادہ ہیں اس گھر کے لیے۔ آصف کی یہ باتیں سن کر توصیف اور کاشف بڑی حیرانی سے آصف کی طرف دیکھ رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر آصف بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ کبھی آصف کی طرف دیکھتے اور کبھی سکندر صاحب کی طرف دیکھتے۔ پھر سکندر صاحب نے کہا اچھا تو چلو 45 لاکھ کر لیتے ہیں، جاؤ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آصف ہنسنے لگا اور بولا سکندر صاحب میرا فیصلہ اٹل ہے، 40 لاکھ سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دوں گا میں، اگر سمجھ میں آتا ہے تو بتا دیں ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، اب چاہے جس کو مرضی بیچی۔ تحریر دیمی ولف۔ یہ کہہ کر آصف نے اپنے بھائیوں کو کہا چلو بھائیوں چلیں، تو توصیف نے آصف کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا بھائی ہم دونوں نے آپ کو 30 لاکھ دیے ہیں، تو آپ بھی تو اپنے 15 لاکھ ڈال کر وہ گھر لے لو، کیونکہ بنی بنائی بات کو بگاڑ کر جا رہے ہو۔ آصف نے کہا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اب تم لوگ چلو یہاں سے۔ آصف کی یہ بات سن کر توصیف اور کاشف غصے سے باہر چلے گئے، اور جیسے ہی ان کے پیچھے آصف جانے لگا تو سکندر صاحب نے کہا رکو آصف، تو آصف اسی وقت رک گیا اور سکندر صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی سکندر صاحب نے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اشارہ سے پوچھا تو سفیان نے بنا بولے ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سکندر صاحب نے آصف کو کہا ٹھیک ہے آصف، ہم تمہیں 40 لاکھ میں وہ گھر بیچ رہے ہیں، لیکن اس گھر کو لینے کے بعد تم کبھی ہماری طرف کسی بھی قسم کی کوئی شکایت لے کر نہیں آؤ گے، اور ایک بات یاد رکھنا جیسے ہی وہ گھر تمہارا ہو جائے گا تو تمہیں تمہارے پیسے کسی صورت میں واپس نہیں ہوں گے، پھر چاہے کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ۔ آصف نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ پھر سکندر صاحب اپنے کمرے میں گئے اور اس گھر کی رجسٹری لے کر آئے اور آصف کو دکھاتے ہوئے بولے یہ دیکھ لو بھائی اصلی رجسٹری ہے، اب تم پیسے لے آؤ اور اس گھر کی رجسٹری اپنے نام کروا لو۔ آصف نے کہا جی میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف وہاں سے باہر آیا اور اس نے اپنے بھائیوں کو وہ سب بتایا جو سکندر صاحب اور آصف کے بیچ میں مکان کے سودے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ تو توصیف اور کاشف بہت خوش ہوئے اور وہ آصف کے ساتھ بنک سے پیسے لینے چلے گئے
और कुछ ही देर में आसिफ वगैरह पैसे के कर सिकंदर साहिब के पास आ गए। फिर वो पैसे सिकंदर साहिब को देकर रजिस्ट्री और स्टाम्प पेपर पर कुछ दस्तखत वगैरह करके घर की चाबी लेकर सब वहां से खुशी खुशी एक मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर आ गए। और फिर आसिफ ने रुखसाना को मेटा खिलाते हुए कहा, बेगम मुबारक हो, अब हम सब लोग एक बड़े घर के मालिक बन गए हैं। अब हम सब के पास अलग अलग कमरे होंगे और हमें किसी को किराया भी नहीं देना पड़ेगा। रुखसाना ने कहा, ये तो वाकई में आप लोगों ने कमाल कर दिया, एक ही दिन में घर खरीद लिया। पर वो घर अब सबको पसंद भी आया है कि नहीं? इतने तौसीफ ने एक और मिठाई का टुकड़ा लेकर रुखसाना को खिलाते हुए कहा, अरे भाभी वो घर नहीं बल्कि महल है, महल। और जब अब भी इसको देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी, इतना प्यारा बना हुआ है। इतने में आसिफ ने कहा, मैं ये खुशखबरी उम्मी को भी सुनाकर आता हूँ, वो जाग रही हैं क्या? रुखसाना ने कहा, हाँ अभी दवाई खिलाई है उन्हें, अब आराम कर रही हैं। इसके बाद आसिफ अपने वालिदा के पास चला गया और तौसीफ और काशिफ आपस में गिले मिलने लगे। रुखसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तौसीफ भाई वैसे कितने में लिया है घर? तौसीफ ने कहा, अरे भाभी आज तो आसिफ भाई ने कमाल ही कर दिया, 70 लाख का घर भाई ने 40 लाख में ले लिया। रुखसाना ने हैरानी से कहा, क्या 70 लाख का घर था? काशिफ ने हंसते हुए कहा, जी भाभी आज तो भाई की कंजूसी काम कर गई और 70 लाख का घर 40 लाख में ले लिया। तहरीर दीमी वुल्फ। अभी काशिफ ये बात कर ही रहा था कि इतने आसिफ भी आ गया और बोला, हाँ तुम लोग मुझे कंजूस कहते थे ना, तो देखो आज कैसा सौदा किया मैंने। तौसीफ ने कहा, जी भाई आज तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए। हाँ कहकर काशिफ और तौसीफ तालियां मारने लगे। तभी आसिफ ने कहा, अरे ये सब छोड़ो, अब जल्दी से इस घर में शिफ्ट होने के बारे में सोचो वरना हमें अगले महीने का किराया भी पड़ जाएगा। वैसे भी 7 दिन के बाद अगला महीने का किराया अदा करना है, इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। तौसीफ ने कहा, भाई मैं तो कहता हूं कि हमें कल ही सारा सामान समेटकर इस घर में चले जाना चाहिए। काशिफ ने कहा, हाँ भाई हम दोनों कल की एक और छठी कर लेते हैं और सारा सामान उठा लेते हैं। आसिफ ने रुखसाना की तरफ देखा तो रुखसाना ने भी कहा, हाँ काशिफ सही कह रहा है, अब जाना जो है तो कल ही चले जाते हैं। वैसे भी वहां जाकर बहुत काम होगा, इतना बड़ा घर है तो इसकी सफाई सुथराई भी करनी पड़ेगी, इसलिए जल्द से जल्द ही हमें वहां जाना चाहिए। आसिफ ने कहा, तो ठीक है फिर हम सब कल ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज मालिक मकान को कह देता हूं कि हम इसी महीने में घर खाली कर देंगे, तब तक तुम लोग आज जितना हो सके सामान को समेटना शुरू कर दो ताकि हम कल सुबह ही जल्दी से जल्दी यहां से रवाना हो जाएं। ये कहकर आसिफ मालिक मकान की तरफ चला गया और बाकी लोग ने अपने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। और फिर रात के वक्त भी आसिफ अपनी फैमिली साथ सामान की पैकिंग करवाता रहा। अगले दिन सुबह जब सब सामान पैक हो गया तो काशिफ जल्दी से जाकर एक ट्रक ले आया और कुछ लोग भी साथ में ले आया। इसके बाद सब ने मिलकर ट्रक में सामान चढ़ाया और वहां से नए घर की तरफ चलने लगे। तो आसिफ ने अपने भाइयों से कहा, यार तुम सब लोग चलू और मैं मालिक मकान को इस घर की चाबी देकर आता हूं। इसके बाद तौसीफ ने रुखसाना को अपनी बाइक पर बिठाया और अपनी उम्मी को आसिफ के दोनों बेटों को काशिफ के साथ ट्रक में बैठा दिया और सब वहां से चल पड़े। और काफी देर के बाद आसिफ भी उनसे रास्ते में जा मिला और सब नए घर पहुंच गए। रुखसाना ने घर देखते ही कहा, वह क्या घर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये घर हमारा है। इतने में आसिफ ने कहा, क्यों कैसा है? रुखसाना ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है। इतने में ट्रक वालों ने आसिफ से कहा, भाईजान जरा जल्दी कर ले, हमें सामान उतार कर वापस दूसरी जगह भी जाना है। आसिफ ने जल्दी में कहा, हाँ। ये कहते हुए आसिफ ने घर के गेट को खोल दिया और सब लोग सामान ट्रक से उतार कर घर के आंगन में रखने लगे। इस दौरान रुखसाना और बच्चे घर में चहल कदमी करते हुए घर का मुआयना करने लगे और कुछ ही देर में सब सामान उतर गया और ट्रक वाले लोग अपने पैसे लेकर चले गए। अब आसिफ, तौसीफ और काशिफ एक एक करके सामान कमरों में रखने लगे। इतने में रुखसाना ने झाड़ू पकड़ी और एक कमरे में जाकर वहां की सफाई शुरू कर दी। तभी रुखसाना को लगा कि जैसे इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रुखसाना ने फौरन पलट कर पीछे देखा तो इसे कोई भी नजर नहीं आया। रुखसाना ने सोचा शायद ये इसका वहम था। उसके बाद रुखसाना फिर से झाड़ू देने लगी और झाड़ू देते वक्त अचानक इसकी नजर एक जगह पर पड़ी जहां पांव के निशानात बने हुए थे, जैसे कि कोई अभी अभी वहां से नंगे पांव चल कर गया हो, जबकि इस जगह से रुखसाना झाड़ू मार चुकी थी। रुखसाना ने फौरन झाड़ू छोड़ दी और घबरा कर अपने चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि इस वो वक्त में सिवाय रुखसाना के और कोई नहीं था। वो ये सोचने लगी कि ये पांव के निशानात किसके हैं। इतने में आसिफ कमरे में आया और रुखसाना से कहने लगा, यार अगर सफाई हो गई है तो बता दो ताकि कुछ सामान इस कमरे में भी रख दें। तो रुखसाना ने
सहमे हुए अंदाज में आसिफ को जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अजीम के अबू ये देखो ये पाँव के निशान कैसे हैं, मैंने अभी यहाँ से झाड़ू फेरी है लेकिन ये तो निशान ताज़ा हैं जैसे अभी कोई यहाँ से गुजर कर गया हो। आसिफ नीचे बैठकर पाँव के निशानात का जायजा लेने लगा और फिर अपना सर कजैती हुए कुछ सोचने लगा और फिर कभी रुखसाना के पाँव की और कभी निशानात की तरफ देखने लगा। रुखसाना ने कहा, क्या देख रहे हैं? आसिफ ने कहा, मैं ये देख रहा हूं कि तुमने तो जूती पहनी हुई है और तुम्हारे पाँव का साइज भी उन निशानों से छोटा है और ये निशान तो तुम्हारे पाँव से काफी बड़े हैं। इसका मतलब है ये निशान तुम्हारे पाँव के निशान नहीं हैं और तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई आया भी नहीं था। ये कहते हुए आसिफ निशानों के पीछे चलता हुआ कमरे की दीवार के पास जाकर रुक गया और बोला, पर ये निशान तो इस दीवार के पास आकर खत्म हुए हैं। इससे तो लग रहा है कि जैसे कोई इस दीवार की तरफ आया है, पर इससे आगे वो कहाँ गया? बाकी तरफ तो कोई निशान नहीं है। तहरीर दीमी वुल्फ। रुखसाना ने कहा, पर वो आया कहाँ से होगा, क्योंकि दरवाजे की तरफ से तो कोई इस तरफ नहीं आया, वरना दरवाजे के पास भी निशान होते, पर ये निशान तो कमरे के बीचों बीच ही है। आसिफ ने कहा, मैं भी यही देखकर हैरान हूं, या फिर कोई दीवार को देखता हुआ उल्टा पीछे की तरफ आया है और वही रुक गया, पर आखिरकार वो गया किस तरफ? इतने में काशिफ भी आसिफ को आवाज देते हुए कमरे में आया और कहने लगा, अरे भाई जल्दी कर लो, सामान उठवा लो, फिर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करो, बहुत भूख लगी हुई है, दोपहर हो गई है, बहुत से काम बाकी हैं अभी। आसिफ ने कहा, हाँ चिल्लू, पहले सामान उठाएं फिर खाने का भी कर लेते हैं कुछ। ये कहकर आसिफ बाहर चला गया और रुखसाना फिर से इन कदमों के निशानों को देखने लगी। इतने में रुखसाना को किसी ने धीमी सी आवाज में कहा, मुझे ढूंढ रही हो? तो रुखसाना अचानक चौंक कर इधर अलिफादेर देखने लगी और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। इतने में तौसीफ रुखसाना के पास आया और बोला, भाभी सब काम छोड़कर पहले खाना बना लो, किस्म से बहुत भूख लगी है। रुखसाना ने कहा, अरे अभी कैसे खाना बनेगा, अभी तो किचन में सामान भी नहीं लगाया, पहले चूल्हा वगैरह तो फुट कर दो किचन में। तौसीफ ने कहा, अरे भाभी वो सब हमने कर दिया है, क्योंकि मैं तब से इसी काम में लगा हुआ था और हमने फ्रिज भी किचन में ही रख दी है, क्योंकि किचन में काफी जगह थी। रुखसाना ने कहा, अरे भाई ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, वरना बार बार मुझे किचन से निकलकर कमरे में जाना पड़ना था। इतने में आसिफ थके हुए अंदाज में आया और बोला, अरे मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, अब बाकी का सामान खाने के बाद ही रखेंगे। रुखसाना ने कहा, अभी इतनी जल्दी तो खाना नहीं बन सकता, आप ऐसा करें कि दोपहर का खाना बाहर से ही मंगवा लें, बाकी रात का खाना मैं घर में ही तैयार कर लूंगी। आसिफ ने कहा, ठीक है तौसीफ, ऐसा करो, ये कुछ पैसे ले जाओ और तमाम घर वालों के लिए कुछ खाना ले आओ और रात के पकाने के लिए बड़ा गोश्त और सब्जी वाली दुकान से आलू, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह भी लेते आना। तौसीफ ने पैसे लिए, खाना और बाकी सामान लेने के लिए बाहर चला गया। इतने में रुखसाना ने आसिफ से कहा, अजीम के अबू पता है जहां वो पैरों के निशान पड़े थे वहां से मुझे कोई आवाज भी सुनाई दी थी। आसिफ ने अचानक हैरत से रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, किया कौन सी आवाज, कैसी आवाज? रुखसाना ने कहा, जब अब काशिफ के साथ कमरे से बाहर गए थे तो मैं उन निशानों की तरफ देख रही थी तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे ढूंढ रही हो। आसिफ ने कहा, तो ये किसने कहा था, कौन था वो? रुखसाना ने कहा, वो जो भी था पर नजर नहीं आया, इस वजह से मैं डर कर कमरे से बाहर एक थी। आसिफ ने कहा, अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए खुद से हल्की सी आवाज में कहा, आखिर ये है क्या चीजें यहाँ किसी को रहने ही नहीं देती? तभी रुखसाना ने हैरानी से आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब अब कुन चीजों की बात कर रहे हैं? तो आसिफ ने चौंक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोचने लग गया था। रुखसाना ने डरे हुए अंदाज में कहा, अजीम के अबू, मुझे तो लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, तभी तो उन लोगों ने इतना बड़ा और खूबसूरत घर सिर्फ 40 लाख में दे दिया है। आसिफ ने फिर से बात को गोल करते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये घर जिस जगह पर है यहाँ जमीन की कीमत भी बहुत कम है, देखा नहीं कि यहाँ अभी भी बहुत से घर जेर तामीर हैं, और हमारे घर के पीछे वाले मकान को ही देख लो, एक साइड की दीवार है बस, बाकी तरफ से अभी कुछ बना ही नहीं है। यहाँ लोग जगह लेकर छोड़ देते हैं, ये हमारी किस्मत के हमें बना हुआ खूबसूरत घर मिल गया है। तुम भी ना ऐसे ही कुछ भी सोचने लग जाती हो। अब चिल्लू, जब तक तौसीफ खाना लेकर आता है तब तक घर के बाकी काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो आज घर में ही फंस कर रह गया हूँ, इस वजह से मैं रोज रोज दुकान बंद नहीं करूंगा, जो भी काम है आज ही करने हैं। रुखसाना ने कहा, ठीक, पर अब थके हुए हैं, अब आराम करें, बाकी मैं देख लेती हूँ। इतने में अचानक दूसरी मंजिल से बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई दी।
आसिफ और रुखसाना दौड़कर बच्चों के पास गए तो अजीम और वसीम दोनों एक कमरे के कोने में सहम कर बैठे हुए थे और एक खिड़की की तरफ देख रहे थे। और जैसे ही बच्चों की नजरें आसिफ और रुखसाना पर पड़ीं तो वो दोनों भागकर आसिफ से लिपट गए। रुखसाना ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग डरे हुए क्यों हो? तो अजीम ने बना बोले खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां कोई था। आसिफ ने अजीम के तरफ देखते हुए कहा, बेटा कौन था वहां? ये कहते हुए आसिफ खिड़की तरफ गया और खिड़की से बाहर इधर अलिफादेर देखने लगा और फिर वापस अजीम की तरफ देखते हुए बोला, यहां तो कोई नहीं है बेटा। अजीम ने कहा, अबू वहां पर वाकई में कोई था। फिर अजीम ने वसीम की तरफ देखते हुए कहा, क्यों वसीम, वहां था ना कोई? वसीम ने रुखसाना के पीछे छुपते हुए बना बोले, हाँ मैं सर हिला दिया। आसिफ ने अजीम से कहा, पर वो था कौन? अजीम ने कहा, कोई ड्रोनी सी औरत थी, वो इस खिड़की से बाहर चली गई है। तहरीर दीमी वुल्फ। रुखसाना ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना अब से इस घर में कुछ है, पर अब मानने को तैयार नहीं। आसिफ ने कहा, यार क्या हो गया है? हो सकता है कोई चूरनी हो जो वहां से भाग गई है। रुखसाना ने कहा, बात तो आप अजीब कर रहे हैं, भला कोई औरत इतनी ऊपर से नीचे कैसे छलांग लगा सकती है? आसिफ ने कहा, अच्छा अब ये बातें बंद करो, पहले ही बच्चे बहुत डरे हुए हैं। और चिल्लू यहां से इतने में नीचे से तौसीफ की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था कि सब लोग आ जाओ, मैं खाना लेकर आ गया। और रुखसाना ने दोनों बच्चों के माथे पर चूमा और उन्हें लेकर नीचे चली गई। और रुखसाना के नीचे जाते ही आसिफ एक बार फिर से खिड़की की तरफ गया और खिड़की से बाहर झांक कर फिर से इधर अलिफादेर देखा और फिर खिड़की बंद करके नीचे चला आया और फिर सब नीचे बैठकर खाना खाने लगे। इस दौरान आसिफ की नजर तौसीफ पर पड़ी तो वो खाने का नवाला हाथ में पकड़े कुछ सोच रहा था। आसिफ ने तौसीफ को कहा, अरे भाई तुम कहाँ खोए हुए हो, खाना क्यों नहीं खा रहे? तौसीफ ने आसिफ की बात पर गौर नहीं किया और वैसे ही सोच में डूबा रहा। फिर आसिफ ने अपने हाथ को तौसीफ की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, क्या ओ भाई कहाँ गुम है, सुन रहे हो? तो आसिफ ने एकदम से चौंक कर कहा, जी भाई क्या हुआ, कुछ कहा आपने? आसिफ ने कहा, यार कहाँ खोए हुए हो जो तुम्हें मेरी आवाज ही सुनाई दे रही? तौसीफ ने पहले सबके चेहरों की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं भाई कोई बात नहीं है। रुखसाना ने कहा, तौसीफ गोश्त वगैरह ले आए थे? तौसीफ ने कहा, जी भाभी फरीज में रख दिया है। ये कहते हुए तौसीफ ने अपनी जेब को हाथ लगाया और जेब में कुछ तलाश करने लगा और फिर रुखसाना से कहने लगा, आह सॉरी भाभी, वो सामान के साथ में बकाया पैसे भी गलती से फरीज में रख आया हूं, वो भी निकाल लेना फरीज से। तौसीफ की ये बात सुन सब हंसने लगे। रुखसाना ने कहा, तौसीफ भाई वो फरीज था कि तिजोरी? तौसीफ ने शर्मिंदा होते हुए कहा, भाभी वो पैसे और सामान के शॉपिंग बैग मैंने एक ही हाथ में पकड़े हुए थे, इस वजह से शॉपिंग बैग के साथ पैसे भी मैं फरीज में रख दिए। अनजाने में रुखसाना ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा चिल्लू कोई बात नहीं, हो जाता है। और फिर तौसीफ खाना खाने लगा। फिर आसिफ ने अपनी गर्दन को नामे घुमाते हुए कहा, अजीब आदमी है। फिर खाना खाने लगा और फिर खाना खाने के बाद सब सामान की सेटिंग में लग गए और फिर शाम तक सारी सेटिंग हो गई। इसके बाद रुखसाना किचन में रात के लिए खाना तैयार करने चली गई और बाकी लोग टीवी लाउंज में बैठ गए। इतने में तौसीफ ने आसिफ से कहा, भाई मुझे अब से कोई जरूरी बात करनी है। आसिफ ने कहा, हाँ हाँ करो, किया बात है? तौसीफ ने कहा, भाई हम बाहर सहम में जाकर बात करते हैं। आसिफ ने कहा, अरे ऐसी भी क्या बात है जो तुम बाहर जाकर करना चाहते हो? तौसीफ ने कहा, भाई यहाँ बच्चे हम बाहर चलकर बात करते हैं। आसिफ ने उठते हुए कहा, अच्छा चिल्लू। जब दोनों बाहर आ गए तो तौसीफ ने कहा, भाई दरअसल जब मैं खाना लेने के लिए बाहर गया तो एक पर्चों की दुकान वाले ने मुझे आवाज दी जो कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है। मैं जब इस दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे कहा कि आप लोग यहाँ इस भौतिया घर में रहने आए हो। तो मैं इसकी बात सुनकर हंसने लगा और फिर मैंने कहा, अरे भाई तुम हमारे खूबसूरत घर को भौतिया क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें भूत लगता हूं क्या? तो वो दुकानदार ने कहा, अरे जितना जल्द हो सके इस घर से चले जाओ वरना बहुत नुकसान उठाओगे, क्योंकि इस घर में शैतानी चीजों का राज है और तुम लोगों से पहले बहुत से लोगों ने इस घर में रहने की कोशिश की लेकिन वो यहाँ से भाग गए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई मर गया था इस घर में रहने से, क्योंकि वो शैतानी चीजें किसी को यहाँ बसने नहीं देती। आखिरी वक्त में कोई सिकंदर नामी शख्स अपनी फैमिली को लेकर इस घर में रहने आया था, लेकिन वो सब भी रातों रात भाग गए थे, वरना उन्हें भी किसी शैतानी चीज ने मार देना था। और एक बात, तुम्हारे घर के पीछे जो घर बन रहा है वो मेरा
ہے لیکن मैं अभी तक इसकी एक ही दीवार बना सका हूं क्योंकि जब भी मैं इस मकान को बनाने की कोशिश करता हूं तो मेरे मजदूरों के साथ कोई ना कोई खौफनाक हादसा हो जाता है। कभी किसी मजदूर को कोई चीज नजर आती है और कभी किसी मजदूर को कोई धक्का देकर गिरा देता है और मजदूर काम छोड़कर भाग जाते हैं। इसी वजह से मैं अपना घर भी तामीर नहीं कर पा रहा और इसे ऐसे ही बेच रहा हूं, लेकिन कोई इसे खरीदता ही नहीं है क्योंकि यहाँ काफी लोग इस घर के बारे में जानते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी और से पूछ ले, लेकिन वहां रहना खुद को मौत के हवाले करना है। अब जाओ और मेरी बातों के बारे में गौर से सोचना। तौसीफ ने कहा, भाई इस दुकान वाले की बातें सुनकर मैं डर सा गया हूं, कहीं वो सच तो नहीं कह रहा। इसी वजह से मैं खाना खाते हुए भी इसकी बातों के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो जिस सिकंदर का जिक्र कर रहा था वो सिकंदर साहब तो वही है ना जिनसे हमने ये घर खरीदा है। आसिफ ने तौसीफ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और नजरें चराकर इधर अल्फादेर देखने लगा। तौसीफ ने कहा, भाई मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। तो आसिफ ने उकता कर कहा, हाँ यार, इस घर को लेकर यहाँ के लोग बातें करते हैं लेकिन हमें इस घर में रहना है और हम देख लेंगे हर शैतानी चीज को। और वैसे भी तौसीफ तुम ये बताओ कि जितने पैसों में ये घर खरीदा है तो क्या इतने में हमें किसी ने इतना खूबसूरत और घर देना था क्या? तौसीफ ने कहा, नहीं भाई, पर वो दुकानदार कह रहा था कि इस घर में बहुत लोग मरे हैं। आसिफ ने कहा, यार मरना तो एक दिन सब ने है, जरा सोचो अगर हम पुराने घर में होते तो अगर अल्लाह न करे कोई मर जाता तो क्या तुम तब भी यही कहते कि इसको शैतानी चीजों ने मारा है? तौसीफ ने कहा, नहीं भाई। आसिफ ने कहा, तो फिर मौत तो हर जगह आ सकती है, फिर चाहे हम कहीं भी रहें। तौसीफ ने कहा, जी भाई। फिर आसिफ ने तौसीफ के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई ऐसे ही लोगों की फजूल बातों में नहीं आया करते और ऐसे सस्ते घर हमें रोज रोज नहीं मिलेंगे। देखो तो जरा इस घर को कितना खूबसूरत है, इतना बड़ा सहन है, बड़े बड़े कमरे हैं, पीछे खूबसूरत बैकयार्ड है और हमें क्या चाहिए? और अगर इस घर में कोई शैतानी चीजें हुई भी तो अब हम यहाँ रहेंगे तो वो खुद बखुद यहाँ से चले जाएंगी क्योंकि इन चीजों को तन्हाई पसंद होती है, चहल पहल नहीं। तौसीफ ने कहा, भाई मैंने छत पर भी कुछ देखा था। आसिफ ने कहा, क्या देखा था? तौसीफ ने कहा, अब मेरे साथ चली, मैं आपको दिखाता हूं। आसिफ ने कहा, चलो फिर ऊपर चलते हैं। ये कहकर दोनों भाई छत पर चले गए और जैसे ही आसिफ छत पर पहुंचा तो आसिफ की आंखें खिली की खिली रह गईं क्योंकि उनकी छत पर जानवरों के सर और कुछ आलाइशें पड़ी थीं जिन्हें देखकर आसिफ हक्का बक्का रह गया और बोला, ये सब यहाँ कैसे आ गया? तौसीफ ने कहा, भाई आज जब मैं दोपहर में छत पर आया था तो ये सब मैंने देखा और फिर मैं नीचे चला गया था। आसिफ ने कहा, ये कोई बली तो यहाँ नहीं ले आई क्या? तौसीफ ने कहा, भाई ये किसी बली का काम नहीं है क्योंकि बली इतने भारी भरकम जानवरों के जिस्म के हिस्सों को यहाँ चौथी मंजिल पर नहीं ला सकती। इतने में आसिफ उन जानवरों के आलाइशों की तरफ गया तो देखा कि ये तो वाकई में वही जानवरों के जिस्म के उजलात हैं जिनके बाकी हिस्से एक दिन पहले इसी घर के पीछे वाली साइड पर पड़े मिले थे जहां एक शख्स बैठा रो रहा था। आसिफ परेशान होकर तौसीफ की तरफ देखने लगा। फिर इसने तौसीफ से कहा, चलो नीचे चलते हैं। तौसीफ ने कहा, भाई उन जानवरों के उजलात को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, पहले ही उनमें से बहुत बदबू आ रही है। आसिफ ने कहा, अभी नहीं, अभी तो शाम ढल रही है और आसपास लोग भी छतों पर नजर आ रहे हैं और वो देखो सब हमारी तरफ अजीब तरीके से देख रहे हैं। ऐसा करते हैं, उनको रात में फेंक देंगे, अभी फेंका तो लोग देख लेंगे और फिर फजूल की बहस छिड़ जाएगी। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई, चली फिर चलते हैं। अभी दोनों भाई नीचे जा ही रहे थे कि अचानक से किचन से रुखसाना के चीखने की आवाज सुनाई दी। आसिफ और तौसीफ भागकर किचन में गए तो रुखसाना गिरी हुई फरीज के सामने खड़ी कांप रही थी और फरीज का सारा सामान बिखरा हुआ नीचे गिरा पड़ा था। आसिफ ने रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ रुखसाना, तुम गिरी हुई क्यों हो और ये सामान क्यों गिराया हुआ है जमीन पर? रुखसाना ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, अभी यहाँ कोई था। आसिफ ने हैरत से पूछा, क्या मतलब कौन था यहाँ? रुखसाना ने कांपते हुए कहा, मैं गोश्त धोकर फरीज में रखा था और मैं चूल्हे पर मसाला भून रही थी कि इतने मुझे फरीज के खिलने की आवाज आई। जब मैंने फरीज की तरफ देखा तो कोई खौफनाक साया मुझे फरीज के पास खड़ा हुआ नजर आया और मेरे देखते ही देखते इसने फरीज खोला और सारा सामान नीचे गिराने लगा और फिर गोश्त निकाल कर खाने लगा। तभी मेरी चीख निकल गई और वो अचानक से कहीं गायब हो गया। रुखसाना की ये बात सुनकर आसिफ और तौसीफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आसिफ ने कहा, उनका कुछ करना पड़ेगा वरना ये जो भी हैं ये हमें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। लेकिन तुम सब लोग एक बात जहन में रख लो, चाहे ये हमें जितना भी तंग कर ले हम उनसे डर कर ये घर नहीं छोड़ेंगे।
रुखसाना ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब ये कौन सी चीजें हैं? अब क्या जानते हैं इस बारे में कुछ? आसिफ शर्मिंदा सा होकर तौसीफ की देखने लगा तो फिर तौसीफ ने बात को पलटते हुए रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, ये बस छोटी मोटी छलावा टाइप चीजें हैं जो कि अक्सर खाली घरों में होती हैं, लेकिन जब घर में कोई रहने लगे तो ये खुद ही घर छोड़कर चली जाती हैं। ये कहते हुए तौसीफ ने आसिफ की तरफ देखते हुए आंख मारी और बोला, क्यों आसिफ भाई, से ही कहा ना मैंने? तो आसिफ ने अचानक हड़बड़ा कर कहा, हाँ ये कुछ नहीं है, तुम तो ऐसे ही डर गई हो, देखो इस चीज ने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना, ये खुद ही भाग जाती हैं, सिर्फ आज के दिन ही तंगी हो सकती है, कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम अब फिक्र नहीं करो और किसी और से इस बारे में बात ना करना वरना बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। तहरीर दीमी वुल्फ। रुखसाना ने कहा, मगर वो सारा गोश्त खा गया, अब मैं पकाऊंगी क्या? आसिफ ने कहा, अब शाम हो गई है, इस वक्त तो पत्ता नहीं गोश्त मिलेगा भी कि नहीं, तुम ऐसा करो कि आज सिर्फ आलू ही पक्का लो, गोश्त हम कल पक्का लेंगे। रुखसाना ने कहा, ठीक है, पर अब मेरे पास ही खड़े रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आसिफ ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है। तौसीफ ने कहा, भाई मैं बच्चों के पास जा रहा हूं, पता नहीं काशिफ उनके पास बैठा हुआ है कि नहीं। आसिफ ने कहा, हाँ जाओ। तौसीफ कमरे में चला गया और आसिफ रुखसाना के साथ किचन के काम में रुखसाना का हाथ बटाने लगा और कुछ देर में रात शुरू होने लगी और रुखसाना ने खाना तैयार कर लिया और फिर रुखसाना आसिफ की हमरह खाना लेकर कमरे में गई तो वहां सब मौजूद थे सिवाय काशिफ के। आसिफ ने तौसीफ से पूछा, काशिफ कहाँ है? इसे बिला लो, खाना तैयार हो गया। तौसीफ ने कहा, भाई काशिफ तो केबल वाले को लेने गया हुआ है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसे। आसिफ ने कहा, यार इतनी क्या जल्दी थी, केबल सुबह नहीं लग सकती थी क्या? तौसीफ ने हंसते हुए कहा, भाई आपको तो पता है न, काशिफ रात देर तक मोबाइल और टीवी में घुसा रहता है। आसिफ ने कहा, हाँ उनके बना तो इसको खाना भी हजम नहीं होना था। इतने में बाहर गेट पर दस्तक हुई। तौसीफ ने कहा, मैं देख कर आता हूँ, काशिफ आ गया होगा। ये कहकर तौसीफ ने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि काशिफ अपने साथ केबल वाले को लेकर आ गया था, जिसके कांधे पर एक बैग और तार का रूल था और दूसरे कांधे पर एक लकड़ी की सीढ़ी थी। तौसीफ ने काशिफ को कहा, यार इतनी देर लगा दी है, आसिफ भाई खाने पर इंतजार कर रहे हैं। काशिफ ने कहा, जी भाई मैं कब से केबल वाले के ऑफिस और ये भाई किसी जगह केबल लगाने गया हुआ था, अब ये ऑफिस में आया था तो मैं इसको साथ ले आया हूँ। इतने में केबल वाले ने कहा, ठीक है काशिफ भाई आप लोग खाना खाएं, तब तक मैं बाहर से तार का कनेक्शन करके आता हूं। तौसीफ ने केबल वाले को कहा, अरे भाई अब भी आ जाओ, पहले खाना खा लो। केबल वाले ने कहा, भाई मैं कुछ देर पहले खाना खा कर आया हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग खाएं और तब तक मैं बाहर से अपना काम कर लेता हूं। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई अब करें काम, तब तक हम खाना खा लें। केबल वाले ने बैग गेट के पास रखा और सीढ़ी पकड़कर कहीं लगाने लगा और काशिफ तौसीफ के साथ खाना खाने चला गया और कुछ देर में सब ने खाना खाया और काशिफ केबल वाले को देखने बाहर गेट के पास चला गया।